Welcome, Narpatlal Senior Teacher, Mahatma Gandhi Government English Medium School, Chainpura. Economics, 10th class, Chapter 4, Globalization and the Indian Economy. वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके बारे में हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं. Most regions of the world are getting increasingly interconnected. While this interconnection across countries has many dimensions: cultural, political, social, and economic. So, in this chapter, we are going to read the globalization in more limited sense. अब वर्तमान समय में सभी देश एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, वैश्वीकरण हो रहा है और इसमें सांस्कृतिक रूप से भी है, तो राजनीतिक और सामाजिक रूप से और साथ ही साथ आर्थिक रूप से एकीकरण आ रहा है और इसी को हम ग्लोबलाइजेशन के रूप में जानते हैं. द ग्लोबलाइजेशन इज इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कंपनीज. जो ग्लोबलाइजेशन है इसके बारे में ये है कि विदेशी व्यापार और जो विदेशी इन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ के लोग निवेश करते हैं. मल्टीनेशनल कंपनीज जो एक से अधिक देशों में अपना कारोबार करती है, प्रोडक्शन करती है, उसको हम मल्टीनेशनल कंपनीज के रूप में जानते हैं. इन अ मैटर ऑफ ईयर्स आवर मार्केट हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड. एज कंज्यूमर ऑफ टुडेज वर्ल्ड, सम ऑफ अस have a vast choice of goods and services before us, which is a relatively recent phenomena. और हम देख सकते हैं कि आज के युग में सभी लोग अपनी आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए विश्व स्तर पर तैयारियां चलती है. सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर और इनके जो है पार्ट्स हैं, उनके लिए भी हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं. अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर हो रहे हैं और वस्तुएं आपको उपलब्ध करवाई जा रही है. प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज. द अर्लियर फेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्ड एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम कॉलोनियल कंट्रीज सच एज इंडिया एंड इम्पोर्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियली डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज एंड द USA. But from the middle of the 20th century, things began to change. Some companies came multinational corporations, MNC, as they spread their economic activities to various parts of the world. An MNC is a company that owns or controls production in more than one country. MNC set up offices, factories for productions in regions where they can get cheap labor, other resources to minimize cost and maximize profit. They sell their finished products globally and also produce the goods and services globally. The production process is divided into small parts and spread out across the globe. मल्टीनेशनल कंपनीज जो एक से अधिक देशों में अपना इन्वेस्टमेंट करती है, फैक्ट्रीज लगाती है, ऑफिसेस लगाती है, सप्लाई करती है और वो चीप लेबर्स होना चाहिए, रिसोर्सेज उपलब्ध हो और कॉस्ट अगर कम हो और उनके प्रॉफिट ज़्यादा हो, वहाँ पर अपना इंस्टॉल कर लेती है और इस तरह से ये अपने गुड्स और सर्विसेज ग्लोबली प्रोवाइड करती है और ये एक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट हो गया है. नाउ इंटरलिंकिंग प्रोडक्शंस अक्रॉस द कंट्रीज. In general, MNC set up productions where it is close to the market, where there is skilled and unskilled labor available at low cost, and
where the availability of the other factors of the production is assured. In addition, MNC might look for government policies that look after their interest. Same way of the interlinking production across the country are discussed below. किसी भी एमएनसी को अपना प्रोडक्शन के लिए इंस्टॉल करने के लिए फैक्ट्री बनाने के लिए कुछ विशेष चीज़ें, एक तो जो है स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जो सस्ते में उपलब्ध हो जाए, रॉ मटेरियल हो जाए, सरकारी पॉलिसीज अगर सही हो उनको इन्वेस्टमेंट में मौका देती है। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे इन एडिशन टू दिस व्हाट some ways of the interlinking productions across the countries are discussed. The foreign investment is made by company based in one country, usually MNC, into a company based in another country. MNC set up the production units by setting up factories or offices in foreign countries. Sometimes MNC merge with the local companies and produce jointly. In this way, MNC provides money of the additional investment like buying new machines for faster productions, bring latest technology or productions. MNC buy local productions unit or merge with the local companies to extend production. For example, the Cargill Foods of USA has taken over Parakh Foods in India and become the largest producer of the edible oil in India. MNC also place the orders with small producers for production. MNC determine the price, quality, delivery and labor condition for these distance producers etc. अभी हमने जो बात की है इसमें ये कहा गया है कि जो एमएनसीज होती है वो किसी भी देश में अपना इन्वेस्टमेंट करती है और इस इन्वेस्टमेंट का कारण है कि अगर उन्हें सस्ते में चीज़ें मिले, लेबर मिले, सरकारी पॉलिसी मिले और मांग हो, वहाँ ये अपना यूनिट लगाती है। और कई बार जो है लोकल उस देश की किसी भी कंपनी के साथ वो जो अपना लिंक कर लेती है और इस लिंक के साथ उसी कंपनी को वो जो है अच्छे मटेरियल देती है, मशीन्स देती है, प्रोडक्शन बढ़ाती है और फिर उसको जो है बेचती है। परख जो है फूड्स थी इंडिया की, उसके साथ इन्होंने ऐसा ही समझौता किया था। और जो है हीरो होंडा कंपनी थी, इसमें होंडा विदेशी आई थी और हीरो इंडिया की थी, इन्होंने मर्ज होकर अपना काम किया और अब जो है होंडा अलग प्रोडक्शन कर रही है, हीरो का अपना आ रहा है। हम लोग मोटरसाइकिल की बात कर सकते हैं इस मैटर पे। और इसी तरह से जो है एमएनसी कंपनीज हैं, ये जब यहाँ पर लोकल कंपनी से डील करती है तो इनको जो है सस्ते में चीज़ उपलब्ध होनी चाहिए, टाइम पर हो, क्वालिटी अच्छी हो, डिलीवरी टाइम पे हो, ये सब कंडीशंस देखी जाती है। नाउ द फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रल मार्केट्स। फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड्स हैज़ बीन अ मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज। व्यापार के लिए ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे और यहाँ पर अधिकार कर लिया। व्यापार के लिए आज हम लिंक हो रहे हैं, WTO वगैरह बने हुए जो आपस में बात करते हैं, मार्केटिंग हो रही है। द फॉरेन ट्रेड्स हेल्प इन इंटीग्रेशंस ऑफ द मार्केट एंड फॉलोइंग वेज। तो ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से कई बातें जो है उनको हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। फैसिलिटीज़ movement of goods, services between countries, facilities, movement of the people, ideas, technology gives opportunity to the producers to sell their products then beyond local and domestic market. Buyers get more choice of goods, increased competitions among the producers, ensure better quality of goods and services। तो इस तरह से ये जो है एग्जाम्पल के लिए राजस्थान भारत का ही ले लीजिए, किस तरह से भारत में आसानी से उनको चीप एंड बेटर क्वालिटी ऑफ द चाइनीज़ टॉय अभी बेचे जा रहे हैं। ये जो है चाइनीज़ टॉय हमारे मार्केट में खुले में बिक रहे हैं, चाइनीज़ मोबाइल वगैरह सब बिक रहे हैं, चीप है इसलिए यहाँ पर लोग ख़रीद रहे हैं, क्वालिटी नहीं देखी जा रही है लेकिन फिर भी जो है मार्केटिंग उसका अच्छा है। ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में आगे की बात करेंगे।
जय हिंद। पार्ट 2। What is the globalization? Globalization is the process of rapid integrations or interconnections between countries by greater foreign investment and greater foreign trade. Globalization causes integration of market as well as the production centers. In the process of the globalizations, MNCs are playing a major role. More and more goods and services, investments and technologies are moving among different countries. ग्लोबलाइजेशन के मार्फत जो है बड़ी बड़ी कंपनियां एक से दूसरे देश में जुड़ती है, एक दूसरे के साथ मार्केटिंग शुरू करती है और प्रोडक्शन सेंटर स्थापित कर देती है। इसे हम ग्लोबलाइजेशन लेते हैं और इसमें ये अपना मेजर रोल अदा करती है और कई देशों में, दो या दो से अधिक देशों में ये अपना व्यापार शुरू कर सकती है। द फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, जो प्रमुख कारण है जिसकी वजह से ये ग्लोबलाइजेशन आया हुआ है। रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज़ स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. Information and communication technology has speeded up the communication services across the globe. Telecommunications facilities, telegraph, telephone, mobile phone, fax, net, internet, through satellite communication is used to contact one another around the world, to access information instantly and communicate from remote areas. An example of this is a news magazine published for readers in London, which is designed and printed in Delhi by using telecommunication facilities and internet. कुछ विशेष तत्व हैं जिसकी वजह से ये शुरू हुआ था, तो इसमें सबसे बड़ा कारण हो गया है कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्था। लगातार जो है टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, एक से दूसरे देश की तरफ आकर्षित की जा रही है। इन्फॉर्मेशन, जो सूचनाएं हैं वो तुरंत एक से दूसरे देश में पहुंच जाती हैं और वो जो है निर्णय करते रहते हैं। टेलीग्राम, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, इंटरनेट वगैरह जो है, इनसे कम्युनिकेशन बढ़ता है और हर वक्त एक एक सेकंड की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, जगह की लोकेशंस आपको मिलती है, रिक्वायरमेंट आपको मिलती है और इससे व्यापार ज़्यादा बढ़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है, लंदन में जो मैगजीन छपती है, लिखता है और वो यहाँ छापी जा सकती दिल्ली में। इसी तरह से ब्रिटिश, यूएसए, वेस्टर्न कंट्रीज़ की कई कंपनियां हैं जिनके लोग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, वो इंडिया में करते हैं। और अब जो है, फॉर एग्जांपल नाउअडेज ड्यू टू कोरोना, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो चाहे वर्कर्स हो, जो ऑनलाइन काम करते हैं, वो अपने घर से वर्क फ्रॉम होम ये हो रहा है। तो ये सब जो है आज तत्व है, जो फैक्टर्स है इफेक्टिंग आवर ग्लोबलाइजेशंस। लिबरलाइजेशन फ्रॉम ऑफ द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़, और सरकार अपने जो राजकीय नियम बनाती है उनमें भी लिबरलाइजेशन देती है, इनको छूट दी जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार चले, एमएनसी जाए, इन्वेस्टमेंट करें। ट्रेड बैरियर्स इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्री इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ट्रेड बैरियर्स की जहाँ तक बात है, ये एक अवरोधक सरकार करती है, वो रेस्ट्रिक्ट करती है कि भाई इतना गुड्स आ सकता है, इतनी सर्विसेज हम ले सकते हैं, ले या न ले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और ये बैरियर अब हट रहे हैं ताकि व्यापार खुला हो सके। टैक्स ऑन इम्पोर्ट called import duty is an example of trade barriers. It is called a barrier because some restriction has been set up. Government use trade barriers to regulate foreign trade and to decide what kind of the goods
and how much of each should come into the country. ये जो ट्रेड बैरियर्स में टैक्स लगते हैं, इंपोर्ट टैक्स लगते हैं, ये एक्सचेंज के ऊपर लगते हैं, चाहे इंपोर्ट करो चाहे जो है एक्सपोर्ट करो, इन दोनों में ये गवर्नमेंट तय करती है कि कितनी हमारी रिक्वायरमेंट है और किस तरह से हम मैनेज करेंगे। ये इसीलिए कुछ पॉलिसीज होती है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद ये जो है फ्रीडम की तरफ जा रही है। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड पुट बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू प्रोटेस्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन्स। देश की आज़ादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही दयनीय थी और ऐसी स्थिति में जो है विदेशी प्रोड्यूसर्स को यहाँ कंपटीशन में आने से रोकने के लिए कुछ बैरियर्स लगाए गए थे। अराउंड 1991 it was felt that Indian producers must compete with the producers around the globe so that they can improve their productions and quality of goods and services। 91 में सरकार ने एक निर्णय किया था कि कंपटीशन होना चाहिए, अगर कंपटीशन होगा तो अपना गुड्स अच्छे बनाएंगे, क्वालिटी बनाएंगे, सर्विसेज अच्छी होगी। Therefore, the government of India in 1991 made some major changes in its foreign investment policy. Liberalizations was one of the such change. Removing barriers, restrictions set earlier by government on foreign trade is known now has liberalization। छूट दी गई थी काफ़ी। इसी तरह से removing barriers of restrictions set earlier by the government on foreign trade is now liberalized। तो विदेशी व्यापार के साथ भी इन्होंने छूट दी गई थी। इसी प्रकार से ट्रेड बिजनेस और डिसीजंस फ्री ले सकते थे अपना, और वहाँ पर अपना जो है दे कैन विश टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। हमारे यहाँ के लोग एक्सपोर्ट कर सकते थे, इंपोर्ट कर सकते थे। नाउ द गवर्नमेंट imposes less restriction than before and it is therefore considered to be more liberal। ये एक स्थिति बनी थी हमारे यहाँ। फिर हम लोग जुड़ गए थे और एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द वन सच ऑर्गेनाइजेशन हु एम इज टू लिबरलाइज द इंटरनेशनल ट्रेड। इसका एक उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में छूट दी जाए, एक दूसरे से जुड़े, और ये WTO का विशेष कार्य कर रहा है। WTO establish rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed। Though the WTO is supposed to allow free trade for all countries, but it is found that developed countries have unfairly implemented some rules to their own advantages and they have forced and developing countries to remove barriers from their countries। WTO ने जो है जो बैरियर्स होते थे, अवरोधक होते थे, उनको हटाने के लिए फोर्स किए थे, लेकिन ये फील हुआ कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सक्षम है, उन्होंने अपने बैरियर्स किसी भी तरह से लगा के रखे थे और इसकी बात के बारे में उन्होंने अपनी बात कही थी। तो इस तरह से हमने बात की है गवर्नमेंट द्वारा दी गई छूट, विदेशी व्यापार, विदेशी कंपनियां एक दूसरे देशों में जाकर अपना प्रोडक्शन करें और सेल करें, डिलीवरी करें, सर्विसेज दें। ये ग्लोबलाइजेशन का एक उदाहरण है। आज विदेशी कंपनियां भारत में और भारतीय कंपनियां विदेशों में सप्लाई करती है, सेल करती है, प्रोडक्शन करती है और डिलीवरी करती है। अमेजन वगैरह जो है घर घर पहुंचाते हैं, टोमेटो, जोमेटो, पता नहीं कितनी कंपनियां आ गई है और ये हमारे भारत में भी अब इस्टाब्लिश हो रही है, कई कंपनियां आगे बढ़ रही है। तो ये एक वास्तु स्थिति बनी हुई है भारत में और इसी को आगे देखेंगे। तो दिस वाज आवर मेन इन्फॉर्मेशंस। और भारत के जो है कुछ इंडियन कंपनी जो विदेशी है, जैसे इन्फोसिस है, टाटा मोटर्स है, एशियन पेंट्स है, रेनबैक्सी है, सुंदरम फास्टर्स है, ये काफ़ी काम कर रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। हमने ये पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन पार्ट 2। आप इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखें और हल करें। जय हिंद।